Hello all, myself Dr. Diksha Arora. Today I am going to teach the topic of placenta which comes under embryology. So let me start my PowerPoint slides. Wait for a few seconds. I'll be there. Now what is a placenta? Okay, this topic comes under embryology. Okay, आज हम पढ़ेंगे प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा के क्या फंक्शंस है, की क्लासिफिकेशन क्या है. ठीक है, ये सब आज हम क्या पढ़ेंगे, प्लासेंटा के अंडर पढ़ेंगे. क्या समझ में आता है? तो व्हाट इज अ प्लासेंटा? प्लासेंटा क्या है? एक फीटो मैटरनल ऑर्गन है. ओके, फीटो मैटरनल ऑर्गन है. तो क्या है? जो एक जो ऑर्गन है जो कि क्या करता है, फीटस को मदर के साथ ज्वाइन करता है. इट कनेक्ट्स द एम्ब्रियो या फीटस विद द वॉल ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस. इट इज अ सर्कुलर और अ डिश शेप ऑर्गन. इट इज अ सर्कुलर और अ डिश शेप ऑर्गन. तो इसका काम क्या है? फंक्शन इज टू कनेक्ट द embryo या fetus with the wall of the pregnant uterus. It has two surfaces, one is maternal surface and one is fetal surface, and it has also two components, maternal component and the fetal component. मैटरनल सरफेस वो सरफेस है जो कि क्या है, जो मदर की तरफ का सरफेस है. इट इज इरेगुलर एंड डिवाइडेड इनटू 15 to 20 small lobules called as maternal cotyledons. It is irregular. The shape is irregular. The maternal surface is irregular and it is divided into 15 to 20 lobules called as maternal cotyledons. And the fetal surface, जो surface fetal के पास है, that is very smooth and the umbilical cord is attached at or near the center of its surface. ओके okay, क्या है? एक डिस्क लाइक ऑर्गन है एक, जो कि क्या करता है, जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसको मदर के साथ ज्वाइन करता है. इट हैज टू सरफेसेस, मैटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस, एंड इट हैज टू कंपोनेंट्स. वन इज मैटरनल कंपोनेंट एंड अदर इज फीटल कंपोनेंट. जो मैटरनल सरफेस है, दैट इज इरेगुलर एंड डिवाइडेड इनटू 20 small lobules, and these lobules are called as maternal cotyledons. ठीक है, फीटल सरफेस क्या है? स्मूथ है, जैसे वो इरेगुलर था, दिस इज स्मूथ. And the umbilical cord is attached or near the center of its surface. Now the maternal component भी दो थे, maternal component था, fetal component था. Maternal component, it is contributed, it is made up by decidua basalis. It is made up by decidua basalis. And the fetal component, it is made up of chorion frondosum. Chorion frondosum या chorionic plate आप लिख सकते हैं. It has two surfaces and it has two components. Maternal surface is irregular. Okay, and the fetal जो surface है, that is smooth and the umbilical cord is attached to near or its center of the surface. It has also two components, maternal component and fetal component. Maternal component is contributed by decidua basalis and the fetal component is contributed by chorion frondosum या chorionic plate हम उसको बोल सकते हैं. Measurements of the placenta. Measurements of the placenta is क्या है? Measurement diameter is 15-20 centimeter, thickness is about 3 centimeter and weight is about 500 grams. These are the measurements of placenta at full term pregnancy. Diameter is 15 to 20 centimeter, thickness is 3 centimeter and the weight is 500 grams. Now what are the functions of placenta? First is it allows the transport of oxygen, water, electrolytes and nutrients from mother to fetal blood. जो भी मदर के जो ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है या न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वो मदर से किसको पहुंचाता है? वो फीटस को पहुंचाता है, वो एम्ब्रियो को पहुंचाता है. एंड दस मेंटेन्स द न्यूट्रिशन ऑफ द फीटस. फीटस को न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है? फीटस को न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है? प्लासेंटा से मिल रहा है. जितने भी मदर के अंदर ऑक्सीजन है, जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स है, उसका ट्रांसफर होता है मदर टू. Okay, a full-time fetus takes about 25 ml of oxygen. जो एक full-time fetus है, 9-month fetus है, that takes about 25 ml of oxygen per minute from the maternal blood. Second function is eliminates the excretion of CO2. अगर ऑक्सीजन आ रहा है, वाटर आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, तो कुछ एलिमिनेट भी होगा. एलिमिनेट से या एक्सक्रीशन ऑफ CO2, यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीटस इनटू द मैटरनल ब्लड. जो भी क्या है, एक्सक्रीशन होगा CO2 का, यूरिया का और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स का, ठीक है, वो जो फीटस का जो एक्सक्रीशन का मटेरियल होगा, दैट ट्रांसफर्स टू द मैटरनल. और जो मैटरनल की एंटीबॉडीज है, जो कि मदर की एंटीबॉडीज है, ठीक है, रीचिंग द फीटस थ्रू द प्लासेंटा. जो प्लासेंटा तक पहुंचती है किसके थ्रू? बाय द प्लासेंटा. ठीक है, वो क्या करता है? इट गिव्स द फीटस इम्यूनिटी अगेंस्ट सम इन्फेक्शन. प्रोवाइड करता है किसको? फीटस को, अगेंस्ट मेनी इन्फेक्शंस. इट प्रिवेंट्स मेनी बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस. बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी क्या करता है? फीटस तक रीच करने नहीं देता. However, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं, जैसे पोलियो, मीजल्स, रूबेला वगैरह, कुछ वायरसेस ऐसे हैं और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं, वो जो क्या करते हैं, वो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाते हैं. वैसे तो प्लासेंटा पूरी प्रिवेंशन देता है कि कोई बैक्टीरिया या हार्मफुल सब्सटेंसेस ना रीच करे फीटस तक, लेकिन कुछ वायरसेस जैसे पोलियो, मीजल्स, रूबेला एंड बैक्टीरिया पास थ्रू इट.
ओके जो ड्रग ले रही है मदर, ठीक है, may also enter the fetal circulation and can cause congenital malformation, ठीक है, तो क्या है बच्चे में क्या आएगी, malformation आ जाएंगी। इट कीप्स द ब्लड स्ट्रीम सेपरेट, जो ब्लड स्ट्रीम्स है वो अलग अलग रखता है, जो प्लासेंटा है मदर की अलग रखता है और फीटस की अलग रखता है, एंड thus it prevents the antigenic reactions between them. Now the classification of the placenta is based upon the shape. First is discoid, कैसी shape है placenta की, discoid, bidiscoidal, oval, triangular, irregular, lobed, diffuse, placenta succinturata, fenestrated and circumvallate. These are the classification that based on shape. Shape कैसी है placenta पे, शुरू में हमने बात करी थी, it is राउंड है या कम से कम क्या है, इट इज अ सर्कुलर डिस्क लाइक शेप होती है, लेकिन बेस्ड अपॉन द शेप की प्लासेंटा की शेप कैसी है, इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स। डिस्कॉइड है, बाइडिस्कॉइडल है, ओवल है, ट्रायंगुलर है, इररेगुलर है, लोब्ड है, डिफ्यूज है, प्लासेंटा सक्शनचुरेटा है, फेनेस्ट्रेटेड है या सर्कमवेलेट है। ओके जो नीचे लिखा हुआ, अभी इन सबके डायग्राम्स आएंगे। जो प्लासेंटा सक्शनचुरेटा है उसमें स्मॉल पार्ट ऑफ प्लासेंटा इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट। जो बड़ा सा एक प्लासेंटा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके साइज की हमने बात करी, उससे एक छोटा सा पार्ट प्लासेंटा का निकल के अलग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा सक्शनचुरेट। नेक्स्ट इज फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड प्लासेंटा का मतलब क्या है, जो मैंने डिश शेप आपको पढ़ाया, डिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सम होल, उसके बीच में होल प्रेजेंट हो। एंड अदर इज circumvallate papilla, when the circumvallate papilla, can you sorry, circumvallate जो हमारा प्लासेंटा है, when the peripheral edge of the placenta is covered by a circular fold of decidua। जब द पेरिफेरल एज होता है प्लासेंटा का, साइड वाला जो एज है, दैट इज कवर्ड बाय अ सर्कुलर फोल्ड ऑफ डेसिडुआ, दिस इज कॉल्ड एज द सर्कमवेलेट टाइप ऑफ प्लासेंटा। ओके इसके डायग्राम्स आएंगे, इसके डायग्राम्स वन बाय वन आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्कॉइड किसको बोल रहा है। ठीक है, ए इज डिस्कॉइड है, देखो मैंने आपको बताया था डिस्कॉइड है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो डिस्कॉइड के बाद हमने बात करी थी, बाय डिस्कॉइडल है। बाय डिस्कॉइडल का मतलब दो डिस्क मिली हुई है आपस के अंदर। ठीक है, थर्ड वन इज जो बाय डिस्कॉइडल के बाद पढ़ा था, सी वन इज ओवल। सी देखो ओवल शेप का नजर आ रहा है एज कंपेयर टू ए एंड बी। डी इज ट्रायंगुलर, कुछ ट्रायंगल शेप का आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इरेगुलर, ई इज इरेगुलर, इरेगुलर है ना ये सर्कुलर है ना ये डिश शेप है, एक अलग सी शेप है, दैट इज इरेगुलर। ओके नेक्स्ट इज लोब्ड डिफ्यूज। लोब्ड में देखो आपको लग रहा है जो एफ है ना नीचे, दैट इज लोब्ड। लोब्ड में आपको कैसे नजर आ रहा है, जो प्लासेंटा है ना उसके लोब्स बने हुए हैं, तो दैट इज लोब्ड। ठीक है, जी वन इज डिफ्यूज, नेक्स्ट वन इज डिफ्यूज, डिफ्यूज है नेक्स्ट वाला। ठीक है, डिफ्यूज के बाद नेक्स्ट इज प्लासेंटा सक्शनचुरेटा, इसकी हमने बात करी थी, स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा इज सेपरेटेड, कुछ जो पार्ट है प्लासेंटा का वो क्या है, वो सेपरेट हो गया। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लासेंटा सक्सेंचुरेटा। ओके नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट बात करेंगे फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ होल, आपको नजर आ रहा होगा जहां पे एरो है, तो दैट इज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ होल, इसका नाम ही फेनेस्ट्रेटेड है। नेक्स्ट इज सर्कमवेलेट, व्हेन द पेरिफेरल एज ऑफ द प्लासेंटा इज कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ डेसिडुआ। आपको नजर आ रहा है एक क्या है, प्लासेंटा की गोल गोल डिस्क बनी हुई है, बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड नजर आ रही है, उसकी साइड में लेबल्ड है लास्ट वाले डायग्राम में, दैट इज द फोल्ड ऑफ डेसिडुआ। द पेरिफेरल एज ऑफ द प्लासेंटा इज कवर्ड बाय द फोल्ड ऑफ डेसिडुआ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अभी तक हमने शेप की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि ओवल है, बाइडिस्कॉइडल है, फेनेस्ट्रेटेड है, सर्कमवेलेट है। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की अटैचमेंट कैसी है, इट इज कैरेक्टराइज्ड एज ए इज नॉर्मल। जब अम्बिलिकल कॉर्ड जो हमारा प्लासेंटा है उसके बिल्कुल नॉर्मल कौन सी होती है, जब वो सेंट्रली से आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज पैरासेंट्रल। पैरासेंट्रल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। थर्ड वन इज मार्जिनल। मार्जिनल को हम बेटलडोर प्लासेंटा भी बोलते हैं। द प्लासेंटा इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा and the D is filamentous. Filamentous का मतलब है the cord is attached to the fetal membrane close to the peripheral margin of the placenta. बिल्कुल पेरिफेरी पे अगर आपकी umbilical cord present है, ठीक है, प्लासेंटा के, तो that is called as the filamentous. That is based upon the, this classification is based upon the attachment of umbilical cord. Normal is जब जो प्लासेंटा है जो सर्कुलर डिस्क लाइक हमने बात करी उसके बिल्कुल सेंट्रल से ज्वाइन है, तो that is normal. B is paracentral, that is away from the center. C is marginal or battledore. Cord is attached to the margin of the placenta, and the D is filamentous. The cord is attached to the fetal membrane close to the peripheral margin of the placenta. Now see this diagram. इस diagram से देखो, A is normal, B is pericentral. Normal है तो जो umbilical cord है that is attached to the बिल्कुल center से, paracentral that is slightly away from the center. ठीक है, और इसके बाद जो C थी that is marginal और battledore, that is cord is attached to the marginal, बिल्कुल margin से attach है cord. ठीक है, and the last one is the filamentous. The cord is attached to the fetal membrane close to the peripheral margin of the placenta. Okay, now next is according to the distribution of umbilical arteries. कितनी umbilical arteries है? First is dispersed type, second is marginal type, and C is furcate type.
3 टाइप की है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज की, डिस्पर्स टाइप, मार्जिनल टाइप एंड परकेट टाइप। नाउ नेक्स्ट कम था मल्टीपल बर्थ्स एंड द ट्विनिंग। If more than one fetus is carried to a term, it is in a single pregnancy called as multiple birth या twinning. When a mother give birth to two infants at the same time, they are called as twins. ठीक है, जब एक मदर अगर बर्थ देती है, ठीक है, टू इन्फेंट्स को एट द सेम टाइम, दे आर कॉल्ड एज ट्विन्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्विनिंग, दो टाइप्स की ट्विनिंग हमने पढ़नी है, डाइजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक। फर्स्ट इज डाइजाइगोटिक, टू ओवा शेड होते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम द ओवरी, ओवरी के अंदर से टू ओवा शेड होंगे, ईच ऑफ देम मे बी फर्टिलाइज, एक फर्टिलाइज होगा एंड मे डेवलप इन यूजुअल मैनर, और जैसे ईच ऑफ देम, दोनों के दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे जैसे होते हैं, ठीक है, एंड दे डेवलप इन यूजुअल मैनर, जैसे कि जैसे वो ग्रो करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ट्विन्स आर कॉल्ड एज डाइजाइगोटिक ट्विन्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रेटर्नल ट्विन्स। डाइजाइगोटिक ट्विन्स का क्या मतलब है, दो ओवा शेड हुए, ठीक है, फ्रॉम द ओवरी, दोनों के दोनों फर्टिलाइज हुए एंड मे डेवलप इन यूजुअल मैनर, जैसे वो ग्रो करना है ना उसको, वैसे अपने अपने तरह से अलग अलग ग्रो कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ ट्विन्स आर कॉल्ड एज डाइजाइगोटिक ट्विन्स एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रेटर्नल ट्विन्स। नाउ द मोनोजाइगोटिक ट्विन्स अराइज फ्रॉम द सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम। उसमें क्या था, टू ओवा शेड हो रहे थे ओवरी से साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो ईच ऑफ देम, दोनों फर्टिलाइज हो रहे थे। अब वो कह रहा है कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में इट अराइज फ्रॉम द सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम, सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम से होंगे ये अराइज, तो दिस इज कॉल्ड एज मोनोजाइगोटिक ट्विन्स या मैटरनल ट्विन्स। दिस इज द एग्जांपल शोइंग, ये आपको एग्जांपल दिखा रहा है कि व्हाट इज मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड व्हाट इज डाइजाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है, ए इज, सबसे पहले देखेंगे कि प्लासेंटा है, ठीक है, उसके साथ क्या है, जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से दो फीटस अटैच्ड है, इनकी जो एमनियन है वो भी अलग अलग है, जाइगोट से टू सेल स्टेज हुई, मोरुला बनी, ब्लास्टोसिस्ट बना, ठीक है, फिर नीचे क्या होगा, जो दोनों इन्फेंट्स हैं, दोनों अपने 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 जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उनकी अलग अलग है, और बीच में क्या है, एक क्या है, पार्टीशन है, ठीक है, बीच में पार्टीशन है, दोनों यूजुअल ग्रो करेंगे। ठीक है, जो सेकंड वाला डायग्राम है उसमें हम देखेंगे जाइगोट है, टू सेल स्टेज है, मोरुला आएगा, ब्लास्टोसिस्ट आएगा। जो इसमें लास्ट में डायग्राम है ना, उसमें देखो क्या है, उसमें दोनों के पास अपना अपना कंपार्टमेंट नहीं है, दोनों क्या है, दोनों एक ही कंपार्टमेंट के अंदर दोनों है। में क्या थे, तो दोनों के पास अपना अलग अलग कंपार्टमेंट था, इसके पास अपना कंपार्टमेंट नहीं है, इसके पास जो प्लासेंटा है कॉमन है, प्लासेंटा उसमें कॉमन था, अम्बिलिकल कॉर्ड भी है, इसमें दोनों के पास अलग अलग, फीटस भी दोनों अलग अलग है, लेकिन क्या है, दोनों के पास अपने अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है जिसमें दोनों इन्फेंट्स है, दोनों बच्चे जिसमें है। Okay, that's all for today. Bye bye. Thanks for watching.